ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں سونے کی کوشش کر رہی تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیٹ کے اوپر بڑے پیار سے ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں یکدم ہی خوف سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے دیکھا اس وقت کمرہ خالی تھا، پورے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، جبکہ میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ میں چند لمحے اسی حالت میں بیٹھی رہی جب اچانک دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میں دوبارہ سہم گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا اور تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا بتاؤں، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا وہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس ایک ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا۔ دراصل میں اپنے شوہر کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے ہی اسے میری وجہ سے بہت سی پریشانیاں اٹھانا پڑی تھی، لیکن وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا اور کھوجتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، لہٰذا وہ جلدی سے اٹھا اور میرے لیے کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ میری اور احمد کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ ہم دونوں یونیورسٹی کے زمانے سے ہی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن بعد میں ہمارے گھر والے ہماری شادی کے لیے نہیں مان رہے تھے۔ مجبوراً ہم لوگوں کو اپنے گھر والوں کے خلاف ہونا پڑا اور پھر کورٹ میرج کرنا پڑی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کے گھر والوں نے ہمیں قبول نہ کیا اور گھروں سے باہر نکال دیا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ احمد کو ایک اچھی نوکری مل گئی تھی اور کمپنی کی طرف سے گھر بھی مل گیا تھا، جس میں اس وقت ہم دونوں رہائش پذیر تھے اور ایک اچھی مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن مجھے اپنی امی اور باقی گھر والوں کی بہت یاد آتی تھی، اور اب جب کہ میری حالت ہی کچھ ایسی تھی جس میں مجھے سب سے زیادہ میری ماں کی ضرورت تھی۔ میں نے ایک دو بار اپنی امی سے بات کرنے کی کوشش کی اور انہیں منانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کے لہجے میں اس قدر نفرت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، اور جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ لہٰذا پھر میں نے انہیں کال کرنا ہی بند کر دیا۔ آج بھی مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ انہیں کال کرنے کا یا انہیں منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ابو کی وجہ سے بھی مجبور تھی۔ میرے ابو اپنے اصولوں کے بہت سخت تھے۔ جب وہ ایک بار کوئی فیصلہ سنا دیتے تھے تو کوئی بھی انہیں ان کے فیصلے سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ ان دنوں میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، لہٰذا احمد میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھے بیڈ سے بھی اترنے نہیں دیتا تھا اور میرا ہر کام بھی کر دیتا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے شرمندگی ہوتی، لیکن وہ مجھے ڈانٹ کر دوبارہ سے نارمل کر دیتا کہ یہ اس کا فرض ہے۔ دن کے وقت بھی اس نے کام کاج کرنے کے لیے ایک نوکرانی رکھی ہوئی تھی، لہٰذا وہ ہر طرح سے میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اس کی طرف سے مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، مجھے مکمل سکون دستیاب تھا۔ لیکن آج کا واقعہ معمول سے ہٹ کر تھا۔ مجھے باقاعدہ محسوس ہوا تھا کہ کسی نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں چاہ کر بھی اسے اپنا وہم قرار نہیں دے پا رہی تھی۔ میں ابھی اسی حالت میں ہی بستر پر بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ کر بیٹھا ہو۔ میں نے بستر پر پڑی چادر کو خراب ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنے ہوش گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اچانک اسی وقت احمد دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور پہلے والی حالت میں ہی بیٹھی رہی اور چادر کو گھورتی رہی۔ جب وہ میرے بالکل قریب پہنچا، مجھے جا کر احساس ہوا اسے اپنے قریب پا کر میں جیسے ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس بار مجھے خود پر قابو نہیں رہا اور میں نے احمد کو بتا دیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ کیا ہوا اور ابھی دوبارہ مجھے کیا محسوس ہوا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے کے لیے میرے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر ہنسنے لگا۔ اسے ہنستا دیکھ کر مجھے برا لگا اور مجھے غصہ آنے لگا۔
کیا ہو گیا ہے تمہیں چاندنی؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تمہارا وہم ہے اور تمہارے ذہن میں بھرا ہوا فطور ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچا مت کرو اور نہ ہی ان کے بارے میں زیادہ پڑھا کرو، ورنہ بعد میں تمہیں خود ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر میں انہیں برے برے منہ بنانے لگی۔ میں واقعی ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ پڑھتی تھی، لیکن اب میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جب سے مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی اس دن سے میں نے سارے فضول کام چھوڑ دیے تھے اور صرف اللہ کا ذکر کرنے لگی تھی تاکہ میری اولاد نیک اور فرما بردار پیدا ہو۔ میں نے احمد کے ساتھ بیٹھ کر نہایت ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ اسی دوران میں کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کو بھی بالکل بھلا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ برتن رکھنے کے لیے دوبارہ کچن میں چلا گیا، جبکہ میں دوبارہ ہی بستر پر لیٹ گئی۔ ان دنوں نہ جانے مجھے کیوں بہت زیادہ نیند آتی تھی۔ تقریباً رات 12 بجے کا وقت تھا جب میری اچانک آنکھ کھل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں میں بڑے پیار سے انگلیاں پھیر رہا ہو۔ میں تیزی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اچانک اٹھنے کی وجہ سے یکدم ہی میرے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا، لیکن پھر وہ درد خود بخود ہی غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں بھی حیران رہ گئی۔ اس کے بعد میرے کمرے کا دروازہ خود بخود کھلا۔ یہ بالکل ایسا ہی ماحول تھا جیسا کسی ڈراؤنی فلم میں ہوتا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ میں احمد کو اٹھاؤں، پھر کچھ سوچتے ہوئے میں خود ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے آگے آگے چل رہا ہو اور میں بھی کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ اب میرے دل سے ڈر ختم ہو چکا تھا اور وہاں پر ایک سکون چھایا ہوا تھا۔ میں خود ہی اپنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر میرا جسم خود بخود ہی رک گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ احساس ختم ہو گیا۔ جیسے ہی وہ احساس ختم ہوا، میرا جسم کسی بوجھ سے آزاد ہو گیا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے غصہ آنے لگا، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ آج مجھے پتہ چل جائے گا کہ آخر اس سلسلے کے پیچھے کیا قصہ ہے۔ لیکن وہ احساس دوبارہ سے ہی غائب ہو گیا تھا اور اس کی وجہ بھی مجھے سمجھ آ گئی۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر احمد کھڑا تھا، جو ادھ کھلی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرے سے پریشان نظر آ رہا تھا۔ مجھے وہاں پر کھڑا دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے؟ تم رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اسے کیا بتاؤں، لہٰذا میں نے بہانہ بنا دیا کہ میرا دل گھبرانے لگا تھا، اسی وجہ سے کھلی ہوا لینے کے لیے باہر آ گئی۔ میری بات سن کر اس نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگا، تمہیں کتنی بار کہا ہے جب ایسا کچھ بھی ہو تو مجھے جگا لیا کرو، خود اکیلی رات کی اس وقت باہر نہ نکلا کرو، یہ تمہارے لیے اور بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بات واقعی ٹھیک تھی، لیکن اب اسے کیا بتاتی کہ میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، بلکہ کسی کے بلانے پر آئی تھی، جو کہ نہ جانے کون تھا اور مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ دن کے وقت میرے دل میں جو ایک خوف بیٹھ گیا تھا، وہ خوف اب خود بخود ہی ختم ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس خوف کو میرے دل سے نکال کر پھینک دیا ہو۔ اب وہاں پر ایک تجسس تھا جو اس اندیکھے وجود سے ملنے کا تھا اور اسے جاننے کا تھا، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ایک پریشانی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ یہ تھی اپنے بچے کی حفاظت کی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجود کی وجہ سے میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کبھی بھی خود سے نظریں نہ ملا پاتی، لہٰذا میں اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ آخر کیا کیا جائے، اس معاملے سے کیسے نپٹا جائے۔ احمد تو میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، لہٰذا میری ایک دوست تھی جو میرا ہر مشکل اور پریشانی میں ساتھ دیا کرتی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ میں اسے کہوں کہ وہ کسی عامل سے رابطہ کرے، اور اسی سلسلے میں نے اسے فون بھی کیا، لیکن دوسری طرف مجھے پتہ چلا کہ اس وقت وہ ملک سے باہر موجود تھی۔
लिहाजा उसकी पूरी फैमिली ही दूसरे मुल्क में होती थी। कल ही अचानक उसके ख़ानदान में किसी का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वो बग़ैर किसी को बताए रातों रात ही दुबई चली गई थी। उसने मेरे लहजे में परेशानी भांप ली थी। इसी वजह से मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, सब ठीक तो है। मैंने उसे तसल्ली दी क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वो पूरा दिन यूं ही गुजर गया। उस पूरे दिन में मेरे साथ कोई भी वाक़या ना हुआ। वो पूरा दिन मैं चोरी चोरी नज़रों से अपने चारों तरफ देखती रही, लेकिन अब वहाँ पर किसी भी वजूद का नामो निशान तक नहीं था। दूसरी तरफ मेरी डिलीवरी के दिन भी करीब आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं मज़ीद चिड़चिड़ी और गुस्सीली होती जा रही थी। मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा चढ़ जाता था और उसमें सख्ती बेचारे अहमद की ही आती थी, लेकिन वो मेरी तमाम बातों को खुले दिल से बर्दाश्त करता था। उसने कभी भी बदले में मुझे नहीं डांटा था और ना ही कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की थी। वो वाकई अपनी मोहब्बत का हक अदा कर रहा था। तकरीबन शाम का वक्त था। मैं सहन में बैठी हुई थी। उस वक्त मेरे बाल खुले हुए थे, तेज़ हवा चल रही थी और मेरे बाल हवा में उड़ रहे थे। अचानक किसी ने मेरे बालों को कानों के पीछे अड़ाया और मेरे कान में सरगोशी की कि अपने बाल बांध कर बैठा करो वरना नुकसान उठाओगी। ये सरगोशी सुनकर मैं जल्दी से अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और खोजती नज़रों से चारों तरफ देखने लगी, लेकिन थोड़ी देर पहले होने वाला एहसास यकदम ही ख़त्म हो गया था। अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने 2-3 गहरे गहरे सांस लिए और फिर जल्दी से अपने बालों को बांध दिया। उसके थोड़ी ही देर बाद अहमद घर पर आ गया। मैंने आज उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। ये देखकर अहमद बहुत नाराज़ हुआ और कहने लगा कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी, फिर तुमने ये सब क्यों किया? मैंने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया और गहरी सोच में डूबी रही कि आखिर वो आवाज़ किसकी थी। मैं ये भी समझ नहीं पाई थी कि वो किसी मर्द की आवाज़ थी या किसी औरत की आवाज़ थी। मुझे गहरी सोच में डूबा देखकर अहमद दोबारा से कहने लगा, तुम फिर उसी बारे में सोच रही हो? मैंने यकदम ही उसकी तरफ देखा। उसने एक गहरी सांस ली और मेरे करीब बैठकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे समझाने वाले अंदाज में बोला, मैं तुम्हें दोबारा से ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम जितना इस बारे में सोचोगी उतना ही अपना दिमाग ख़राब करोगी। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे भी महसूस होता, लेकिन मुझे आज तक कभी भी ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं हुई। अभी अहमद इस बारे में बात कर ही रहा था जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो और फिर मुझे थपकी दी हो। मैं एकदम ही साकित हो गई, जबकि अहमद मेरी हालत से बिल्कुल अनजान अपनी ही बात किए जा रहा था। ये दरअसल उस अनदेखे वजूद ने मुझे अहमद की ही बात का जवाब दिया था कि अहमद जो कुछ भी कह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फजूल है। हम लोगों का वजूद यहाँ पर रहता है और हम अपनी मौजूदगी महसूस भी करवाते हैं। अहमद जब बात करके खामोश हुआ तो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा, जैसे पूछना चाह रहा हो कि अब तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है। मैंने जल्दी से उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया और उसके साथ ही दिल में ये फ़ैसला किया कि कम से कम अब अहमद के सामने किसी भी गहरी सोच में नहीं जाऊंगी और ना ही कोई अजीब हरकत करूंगी जिससे उसे शक हो कि मैं परेशान हूँ। ये कहकर अहमद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया, जबकि मैं कमरे में बिल्कुल तन्हा ही बैठ गई। उसके साथ ही मुझे कमरे में दोबारा वही अनोखी खुशबू महसूस होने लगी थी जो एक अनदेखे वजूद की आमद का पता देती थी। तुम कौन हो? मैंने हल्की सी आवाज़ में सरगोशी की। मेरी सरगोशी के बाद चंद लम्हे के लिए वहाँ पर सुकून छा गया और फिर उसके बाद ही मेरे कानों में दोबारा से सरगोशी हुई। तुम बहुत जल्द मेरे बारे में जान लोगी। अभी मेरे बारे में जानना इतना ज़रूरी नहीं है। अब वहाँ पर दोबारा खामोशी छा चुकी थी।
मेरा दिल दोबारा तेजी से धड़कने लगा था। मैंने जल्दी से अपने दिल पर हाथ रखा और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद मैं दोबारा से नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद अहमद बाहर आया और मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगी। और रात के वक्त भी मेरी जल्दी आंख लग गई थी, क्योंकि पूरा दिन मैं काफ़ी परेशान रही थी और इसी के बारे में सोचती रही थी। लिहाजा मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अगले दिन अहमद ने मुझे एक नई खुशखबरी दी। उसने मुझे बताया कि मेरे घर वाले राज़ी हो गए हैं, अब वो मुझसे मिलना चाहते हैं। अहमद की बात सुनकर मुझे चंद लम्हे के लिए तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया। ये खबर मेरे लिए बहुत बड़ी थी और बहुत ज़्यादा अहम थी। अहमद ने मुझसे वादा किया कि आज जब वो जॉब से वापस आने के बाद मुझे मेरे घर वालों से मिलवाने के लिए ले जाएगा। मेरा बस चलता तो मैं अभी ही अहमद को कहती कि वो मुझे मेरे घर वालों के पास छोड़ दे, लेकिन ऐसे ठीक नहीं लगता था। अहमद ने मेरी वजह से इतना सब कुछ बर्दाश्त किया था, और अब अगर मैं अहमद के बगैर ही वहाँ पर चली जाती तो फिर मैं अहमद को क्या मुंह दिखाती। लिहाजा मैं बेचैनी से शाम होने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही शाम हुई अहमद घर वापस आया। मैंने उसके कपड़े पहले ही निकाल कर रखे हुए थे। तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर हम दोनों तैयार हो गए और फिर 20 मिनट की ड्राइव करने के बाद हम दोनों मेरी अम्मी के घर पहुंच चुके थे, जहां पर मेरी अम्मी और अब्बू दोनों ही दरवाजे पर खड़े थे। मुझे देखकर अम्मी फूट फूट कर रोने लगी और मुझे गले से लगा लिया। यही हाल मेरे अब्बू का था। मैं उन दोनों से माफ़िया मांग रही थी। उन दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया था। मेरे बहन भाई भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए थे। मुझे यूं लग रहा था जैसे मुझे सारी खुशियां मिल गई हों। उसके बाद निहायत ही खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। अब्बू बहुत ही प्यार से अहमद से बात कर रहे थे और उससे उसकी नौकरी के बारे में पूछ रहे थे। उसके साथ साथ वो उसे कुछ मशवरे भी दे रहे थे। लिहाजा मुझे मर्द हजरात की बातों में दिलचस्पी नहीं थी। मैं उठकर अपनी अम्मी के पास आ गई और उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। उसके साथ साथ मुझे इस बात का भी तजस्सुस था कि आखिर वो एकदम कैसे राज़ी हो गई। ये क्या अहमद ने उन्हें राज़ी होने के लिए कहा था, या उनके अपने दिल में ये बात आ गई थी? मैंने अपनी अम्मी से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे काफ़ी देर से मौका नहीं मिल रहा था, और फिर मुझे मौका मिल ही गया। अम्मी, क्या अहमद ने आपको राज़ी होने के लिए कहा था? मैंने अम्मी से सवाल किया। मेरी बात सुनकर अम्मी चंद लम्हे के लिए हैरान रह गईं और मेरे सर पर हल्की सी चमट लगाकर बोली, रो रो कर तुमने अपना हाल बुरा कर लिया था और अभी तुम कह रही हो कि अहमद ने आपसे बात की। अरे हमारी तो अहमद से इतने अरसे में बात ही नहीं हुई। मुझे तो हर रोज़ तुम्हारा ही फ़ोन आता था, और फिर जब तुम कल फूट फूट कर रो रही थी और अपने अब्बू को अपने बचपन के वाक़यात याद दिला रही थी, तो उनका दिल भी नरम हो गया। तुम्हारी बातें सुनकर किसी का भी दिल नरम हो सकता था। वो तो फिर तुम्हारा अपना बाप था, जिसने तुमसे हमेशा मोहब्बत की थी, और माँ बाप अपनी औलाद से जितने भी नाराज़ क्यों ना हों, उनके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते, और तुम्हारी बातें तो वैसे भी उनके दिल पर जाकर लगी थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे अल्फाज में इस कदर असर है। अम्मी की बात सुनकर तो मैं चंद लम्हे के लिए हैरान हो गई और फिर जल्दी से अपने बिस्तर पर उठ बैठी और अम्मी से पूछने लगी कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। मैंने तो उस दिन के बाद कभी अम्मी को कॉल नहीं की थी। फिर कौन था जो अम्मी को मेरी जगह पर कॉल करता रहा था? हज़ारों तरह के सवालात थे जो मेरे जहन में गूंज रहे थे, लेकिन मेरे पास उनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं था। और फिर जब हम वहाँ से निकलने लगे तो अहमद ने भी मुझसे यही सवाल किया कि तुमने कल कब अपने अब्बू से इस बारे में बात की थी? क्या रात को दोबारा तुम्हारी आंख खुली थी? अहमद की बात सुनकर मैं बौखला गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसकी बात का क्या जवाब दूं। लिहाजा मैंने उसे बहाना कर दिया कि मैंने दिन के वक्त ही बात कर ली थी। मेरी बात सुनकर अहमद मुतमईन नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर भी परेशानी फैली हुई थी। ये एक ऐसा मामला था जिस बारे में हम दोनों मियाँ बीवी को पता ही नहीं था।
और फिर थोड़े दिन बाद ही दोबारा से यही मामला हुआ। अहमद के घर वाले भी अचानक से राज़ी हो गए और अहमद से मिलने के लिए कहा। उन्होंने भी यही कहा था कि चांदनी ने उन्हें कॉल की थी और उन्हें मनाया था, और मैं जैसे इस बारे में अंदाज़ा ही नहीं था, बौखलाकर सबके मुंह देखे जा रही थी। खैर, अहमद बहुत ज़्यादा खुश था। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी है। अहमद ने जोश में ये अल्फाज अदा किए। वो वाकई बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई हर किसी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत और सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला रिश्ता वालिदैन का ही है। लिहाजा वालिदैन को राज़ी रखना ही सबसे ज़्यादा सुकून वाली बात है। मैंने उसकी बातें सुनकर महज मुस्कुरा दी, और फिर मेरे ससुराल वालों ने ऐसी ऐसी बातें की जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। न जाने कौन था जो ये सब कुछ कर रहा था। अचानक मेरे जहन में ख्याल अपनी दोस्त का आया, जिसने मुझे एक बार कहा था कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारी आवाज़ में तुम लोगों के घर वालों को मनाती हूँ। तब मैंने उसे डांट कर खामोश करवा दिया था। जैसा ही मेरे जहन में उसका ख्याल आया, मैंने जल्दी से उसे कॉल मिलाई और बग़ैर कोई तमहीद बांधे उससे इस बारे में पूछ लिया। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गई और फिर कहने लगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं क्यों तुम लोगों के घर वालों से इस बारे में बात करूँगी? वो तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने मजाक किया था। लिहाजा मैंने कॉल रख दी। अहमद के घर वालों से मिलकर हम लोग दोबारा से घर वापस आ गए। अब हमने कुछ दिनों बाद दोबारा ही अहमद के घर जाना था, क्योंकि उसके वालिदैन चाहते थे कि अब हम उसी घर में रहें। हमने उनसे कुछ दिनों का वक्त मांगा था, जिसमें हम घर से तमाम सामान समेट सकते। मैं घर के अंदर जैसे ही दाखिल हुई, एक खूबसूरत खुशबू ने दोबारा ही मेरा इस्तकबाल किया। वो वही खुशबू थी जो मुझे एक अनदेखे वजूद की मौजूदगी के एहसास के बाद महसूस होती थी, और उसके बाद मेरी रूह में सुकून उतर जाता था और मेरी सारी थकावट ख़त्म हो जाती थी। और अभी भी यही हाल हुआ। मैं, जो पहले बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, एकदम से लगने लगा जैसे बिल्कुल चाको चौबंद हो गई हूँ। अहमद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया, जबकि मैं बिस्तर पर ही बैठ गई और दोबारा से इस बारे में सोचने लगी। अचानक मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा हो। इस बार मैंने अनदेखे वजूद का हाथ नहीं झटका और उसे वैसे ही रहने दिया। अब कोई मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता थपकने लगा था। उसके बाद दोबारा से मेरे कान में सरगोशी हुई, क्या अब तुम खुश हो? और उसके बाद मुझे सारी कहानी समझ आ गई कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही अनदेखा वजूद कर रहा था। लेकिन अब उसके साथ साथ मेरे जहन में एक सवाल भी मचल रहा था कि आखिर ये वजूद मेरी मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि एक बात का तो मुझे अंदाज़ा था कि कोई भी दूसरी मखलूक उस वक्त तक किसी इंसान की मदद नहीं करती जब तक उसे उस इंसान से कोई फ़ायदा हासिल ना हो या उस इंसान ने पहले उसकी मदद ना की हुई हो। अब इस बारे में मुझे सिर्फ और सिर्फ वो अनदेखा वजूद ही बता सकता था। लिहाजा अब मैं उससे बात करने के लिए मचलने लगी थी। लेकिन एक और चीज़ का मुझे अंदाज़ा हुआ था कि जितना मैं उस अनदेखे वजूद के बारे में सोचती थी और जितना उसके बारे में बेचैन होती थी, वो अनदेखा वजूद उतना ही मुझसे दूर होता जाता था। और फिर जिस दिन मैं उसके बारे में ना सोचती तो उस दिन वो खुद ब खुद ही मेरे सामने ज़ाहिर हो जाता। लिहाजा अब मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया और ख़ुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करने लगी थी। एक दिन मैं यूं ही सहन में बैठी हुई थी और अपने घर वालों के बारे में सोच रही थी, जब मेरे कानों में दोबारा सरगोशी हुई, क्या तुमने मुझे भुला दिया है? आवाज़ में दुख था और दुख के साथ साथ वहाँ पर शिकायत भी थी। यह आवाज़ सुनकर ना जाने क्यों मैं मुस्कुरा दी। मुझे उसका लहजा बहुत मासूम लगा था और ना जाने क्यों उसका शिकायत करना भी मुझे अच्छा लगा था। लिहाजा इस बार भी मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और यूं ही खामोशी से बैठी रही। चंद लम्हे तक वहाँ पर खुशबू फैली रही
और फिर मुझे दोबारा उसकी बेचैनी में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। तुम मुझे जवाब भी क्यों नहीं दे रही? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो? इस बार भी मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उसे इग्नोर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि अब वो वक्त आ ही गया है जब वो वजूद अपने आप को मेरे सामने जाहिर कर देगा। और फिर ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद मेरे सामने धुआं छाने लगा। वो सफ़ेद धुआं था। जैसे ही धुआं ख़त्म हुआ, वहाँ पर एक निहायत ही खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा था। इस कदर खूबसूरत नौजवान लड़का मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी। वो वाकई किसी को भी मुतासिर करने के लिए काफ़ी था। लेकिन एक चीज़ देखकर मुझे हंसी आ गई। वो उसका फूला हुआ मुंह था। वो वाकई उस वक्त नाराज़ लग रहा था। मैं अपनी मुस्कुराहट को चाह कर भी रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी और खुलकर मुस्कुरा रही थी। मुझे मुस्कुराते देखकर उसने दोबारा से मुंह फुला लिया और फिर साइड पर देखने लगा। उसका ये अंदाज़ मुझे बहुत मासूम लग रहा था। अब इस वक्त मैं अपना सारा खौफ और डर भी भुला चुकी थी। अब उसकी इस हरकत पर मैं खिलखिलाकर हंस रही थी। आप मुझे तंग कर रही हैं, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा, उसने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से नॉर्मल हो गई और उससे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद वो दोबारा से नॉर्मल हो गया और फिर मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगा। मैं भी दोबारा से संजीदा हो गई और उससे पूछ डाला कि आखिर वो कौन है और मुझसे क्या चाहता है। मेरी बात सुनकर उसने एक गहरी सांस ली। मैं आपका एहसानमंद हूँ और आपका एहसान चुकाना चाहता हूँ। मैं उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी क्योंकि उसकी ये बात मैं नहीं समझी थी। उसने मुझे बताया कि आज से 1 महीना पहले ही मैंने एक बिल्ली के बच्चे की मदद की थी। वो बिल्ली का बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही जिन ज़ात था। वो उस वक्त मुश्किल में था और एक जादूगर उसके पीछे पड़ा हुआ था। मैंने ना सिर्फ उस बिल्ली के बच्चे की मरहम पट्टी की बल्कि उस जादूगर की दस्तरस से बहुत दूर लेकर आ गई। और फिर मेरे जहन में अचानक झमाका हुआ। दरअसल 1 महीना पहले ही मैं अपने शौहर के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी। रास्ते में हमारी गाड़ी के सामने अचानक एक ज़ख्मी बिल्ली का बच्चा आ गया। मुझे शुरू से ही जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और मैं उन्हें तकलीफ़ में बिल्कुल नहीं देख सकती थी। लिहाजा जब मैंने उस बिल्ली के बच्चे को देखा तो मेरा दिल बेचैन हो गया। मैंने जल्दी से उसे उठाया और गाड़ी में लेकर आ गई। गाड़ी में ही मरहम पट्टी का सामान मौजूद था, लिहाजा मैंने उसकी वहाँ पर मरहम पट्टी की और फिर उसे दोबारा लेकर घर पर आ गई। 3 दिन तक मैं उसे दूध पिलाती रही, उसका ख्याल रखने की कोशिश करती रही। जब वो बिल्ली का बच्चा सेहत याब हुआ तो वो अचानक ही न जाने कहाँ पर चला गया। मुझे उससे उन दिनों में इतनी मोहब्बत और इतनी उल्फत हो गई थी कि उसका यूं अचानक जाना मेरे दिल को दुखा गया। तकरीबन 1 हफ्ते तक मैं यूं ही बेचैन रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख था। मैं ये तवक्को नहीं कर रही थी कि वो बिल्ली का बच्चा यूं अचानक कहीं चला जाएगा, लेकिन मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कोई बिल्ली का बच्चा नहीं था बल्कि वो एक जिन ज़ात था जो अब मेरे सामने खड़ा था और मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से देख रहा था। उस जिन ज़ात की बात सुनकर मेरे चेहरे पर दोबारा एक मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उससे कहा कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। मेरी बात सुनकर वो मुझे कहने लगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हिफाजत करना चाहता हूँ ताकि मैं किसी भी तरह आपका ये एहसान उतार सकूं। मैंने एक गहरी सांस ली और उसे कहा कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और अब तो मेरी सारी परेशानियां भी ख़त्म हो गई हैं। मेरे घर वालों को तो तुम राज़ी कर ही चुके हो। अब इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई मुसीबत नहीं है, लिहाजा बेहतर है कि तुम अपना वक्त यहाँ पर बर्बाद मत करो और अपने घर वालों के पास चले जाओ। मेरी बात सुनकर उसने तेज़ी से इस्बात में सर हिलाया और मुझे कहने लगा, मैं भी आपसे इजाज़त लेने ही आया था क्योंकि कोहकाफ में मौजूद मेरे घर वाले मुझे याद कर रहे हैं और मुझे वहाँ पर तलब कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि एक बार आपसे मिल कर जाऊँ
और आपको सारी हकीकत बता कर जाऊं। उसकी बात सुनकर मैं भी मुतमईन हो गई और उसे जाने की इजाज़त दे दी। उसके जाने के बाद मैं दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। दिन तेज़ी से गुजरते जा रहे थे और फिर मेरी डिलीवरी का दिन भी आ ही गया। उस दिन मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। रात का वक्त था, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। दर्द से मेरा बुरा हाल था। मैं बार बार अपने शौहर को पुकार रही थी। मेरा शौहर मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। पहले तो गाड़ी चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब गाड़ी चलना शुरू हुई तो अचानक ही बारिश बरसने लगी। बारिश बहुत तेज़ बरसती जा रही थी, जिसमें गाड़ी को गुजारना मुश्किल हो रहा था। और फिर अचानक एक वीरान जगह पर मेरे शौहर ने अचानक गाड़ी रोक दी। शौहर को गाड़ी रोकता देखकर मैं परेशान हो गई और उनसे पूछने लगी कि आखिर क्या हुआ है, आप गाड़ी आगे क्यों नहीं लेकर जा रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और मुझे सहारा देकर गाड़ी से उतारने लगे। और फिर मेरी नज़र थोड़ी ही दूर बने एक अस्पताल पर पड़ी। उस अस्पताल को वहाँ पर देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि आज से पहले मैंने इस जगह पर कभी ये अस्पताल नहीं देखा था। लेकिन फ़िलहाल ये वक्त इन बातों को सोचने का नहीं था। तकलीफ़ से मेरा बुरा हाल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसी सूरत हाल में अम्मी का मेरे पास होना लाजमी था। अभी तो अम्मी भी मेरे पास नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मेरा शौहर हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो मुझे तसल्ली दे और मुझे मुतमईन करे, लेकिन मेरा दिल था जो कि बेचैन होता जा रहा था। उसके साथ साथ इस अस्पताल की यहाँ पर मौजूदगी मुझे शक में मुब्तला कर रही थी। और फिर अपने शौहर के साथ थोड़ी ही देर बाद मैं अस्पताल में दाखिल हो गई। वहाँ का माहौल बहुत ही अजीब व गरीब था। उससे ज़्यादा अजीब वहाँ का अमला था, जो कि मुझे इंसान महसूस नहीं हो रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे कि वो कोई रोबोट हों। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास उनसे बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और फिर डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया और फिर थोड़ी ही देर बाद मेरी डिलीवरी हो गई। लिहाजा मेरी डिलीवरी बहुत ही आराम से हुई। मैंने अपने बच्चे की खुद आवाज़ सुनी थी। जैसे ही बच्चे की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मैं खुशी से झूम उठी। लेकिन जब मैं होश में आई और अपने शौहर से बच्चे के बारे में सवाल किया, तो मेरे शौहर ने मुझे बताया कि मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है। लेकिन मुझे अपने शौहर की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने खुद उसकी आवाज़ सुनी थी। दूसरी तरफ उन नर्सों और उन डॉक्टरों का रवैया भी मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। लिहाजा मैंने एक मौका तलाश किया और जल्दी से उस कमरे में आ गई जहाँ पर सारे बच्चे रखे हुए थे और वहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ें भी आ रही थीं। लेकिन उस कमरे में जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा रो रहा था, जबकि बाकी बच्चे खामोश बैठे हुए थे। और वो बच्चा जो रो रहा था, वो आवाज़ मेरे ही बच्चे की थी। जब मैंने बाकी बच्चों को देखा तो मेरा वजूद साकित हो गया, क्योंकि उनकी हालत बहुत बुरी थी। यूं लग रहा था जैसे किसी ने उनके जिस्म से खून निचोड़ लिया हो। मैं जल्दी से भागकर अपने बच्चे के पास गई, लेकिन जैसे ही मैं अपने बच्चे के पास पहुंची, साथ ही एक निहायत खौफनाक आदमी खड़ा था, जिसे देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मैं अपने घर में मौजूद थी। करीब ही मेरा शौहर खड़ा था, जबकि वो जिन ज़ात भी वहीं पर मौजूद था, जिसने हाथ में मेरा बच्चा उठा रखा था। उसने मेरा बच्चा मेरे हवाले किया और कहा कि यहाँ पर मैंने उस एहसान का बदला चुका दिया है। उसने मुझे बताया कि वो वापस जाने ही लगा था जब उसे मुझ पर आने वाली मुसीबत का पता चल गया। दरअसल हम लोग एक जालिम जिन्नात के अस्पताल में दाखिल हो गए थे। वहाँ से उस जिन ज़ात ने ही हमें बचाया था। मैंने और मेरे शौहर ने उस जिन ज़ात का शुक्रिया अदा किया। लिहाजा वो हमारी इजाज़त लेकर वहाँ से चला गया। मैं अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश थी और उसे चूम रही थी। मेरा शौहर भी बहुत ज़्यादा खुश था। लिहाजा मेरे शौहर को भी अब उन जिन्नात के वजूद पर यकीन आ गया था। उस दिन के बाद कभी भी मेरे शौहर ने मुझे ये नहीं कहा
کہ جنات کا وجود نہیں ہوتا۔ اب جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے میری روح کانپ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میرا دل اس جن ذات کے لیے مشکور ہو جاتا ہے اور اس کے حق میں خود بخود دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔